ماں آج پھر پکار رہی ہے. جب جب دھرتی ماں نے پکارا ہے اس کالے کوٹ نے ہمیشہ لبیک کہی ہے. آج جس طرح سے دھرتی ماں کو نچوڑ کے رکھتی ہے، جس طرح پاکستان کو آج محفوظ کر کے دھرتی ماں کو مقید کر کے جس طرح جکڑ کے اور جو حشر کر دیا ہے اس دھرتی ماں کا، علمان پہلے کبھی ایسا نہ دیکھا تھا. میں تو 1.25 گھنٹے کی لفٹ کی ایک اس میں مجھے گھٹن کا احساس ہوا. مجھے محسوس ہوا کہ 25 کروڑ عوام کس قدر اذیت کر گھٹن سے کس قدر گھٹن سے گزر رہے ہیں. میرا اس کے مقابلے میں میرے ساتھ جو 17-18 لوگ تھے، مجھے ان کی سفوکیشن بھول گئی. مجھے اس قوم کے 25 کروڑ عوام کی اس گھٹن کا احساس ہوا جس گھٹن سے آج گزر رہے ہیں. صحیح موازنہ کیا گیا قبرستان کا، زندہ کا اور مردہ کا. واقعی مردہ کا کوئی احساس نہیں ہوتا ہے. زندہ قومیں، آپ جیسی زندہ ماشاءاللہ قومیں یہ گھٹن کے اس توڑ کے پھینکیں گے انشاءاللہ. آپ دیکھیں، حیرت ہوتی ہے کہ اس ملک میں نہ کوئی آئین ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی عدلیہ ہے، اور شیرازہ بکھیر کے رکھ دیا گیا ہے اس ملک کا. جس شخص نے یعنی اس ملک کو ایٹم بام دیا تو ہینری کسنگر نے دھمکی دی اسے کہ بھٹو تم باز آ جاؤ، اس کو بند کر دو پروگرام کو، ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے. ہم نے ہینری کسنگر کو کچھ نہیں کیا، ہم نے امریکہ کو کچھ نہیں دیکھا. ہمارے ہی جنرل ضیاء الحق نے مولوی مشتاق کے ساتھ مل کے بھٹو کو پھانسی دے کے عبرت کا نشان بنا دیا. شرمناک ہے. آج ایک ڈونلڈ لو نے، ایک 3rd کلاس بیوروکریٹ جو امریکہ کا ہے، ہمارے ایمبیسڈر مجید کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے عمران خان کو نکال دیا تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا. غلام ہے نا، غلام ہیں ہم امریکہ کے. آج سے نہیں، اس وقت سے غلام ہی کر رہے ہیں نا. اور پھر دیکھیں ہم نے ڈونلڈ لو کی اس بات کو کیسے مانا. ہم نے پرائم منسٹر کو چلتا کیا. پہلی بات ہم نے ڈونلڈ لو کی اور امریکہ کی غلامی کی یہ ثبوت کیا. اور پھر یہی ترا نہیں ہوا ختم. انہوں نے کہا نا، ان کو پابا سلاسل کرو، ان کو جیلوں میں ٹھوسو. وزیر اعظم کو جیل میں ٹھوک دیا گیا، وزیر خارجہ کو اور ساروں کو جیل میں. یہ ہے سائفر. او بھائی، بجائے اس کے تم ڈونلڈ لو کے خلاف تم ایکشن لو. تمہاری نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے 2 مرتبہ کہا بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ان دی افیئرز آف پاکستان اور اسٹرانگ ڈیموشن کو. وہ بھی لکھا گیا. ایک دفعہ عمران خان کی وزارت عظمیٰ کے دوران میں سارے سربراہان کے جو افواج پاکستان کے تھے ان کی شراکت و شمولیت میں یہ فتویٰ دیا گیا. اور دوسری مرتبہ شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ میں بھی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے اعادہ کیا اس بات کا جس میں افواج پاکستان کے سربراہان موجود تھے. اور اس وقت سابقہ وزیر اعظم اس نے جا کے نیشنل اسمبلی میں کہا کہ یہ سائفر ایک حقیقت ہے جو پاکستان کی جو ہے مداخلت ہوئی ہے، لیکن سازش نہیں ہوئی. وہ بھائی سازش اور کیا ہوتی ہے؟ امریکہ کی غلامی کرتے ہو. اور سازش کیا ہوتی ہے؟ ہینری کسنگر کے کہنے پر بھٹو کو پھانسی دیتے ہوتے ہو. اور کیا سازش ہوتی ہے؟ امریکہ کے ڈونلڈ لو ایک 3rd کلاس جو ہے بیوروکریٹ کے کہنے پر جو ہے تم اپنے وزیر اعظم کو چلتا کرے ہو. اور سازش کیا ہوتی ہے؟ تم نے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو اندر رکھا ہوا ہے، پابا سلاسل کیا ہوا ہے. اور غلامی کیا ہوتی ہے؟ وہ کون سا کہتے ہیں آفیشیل سیکریسی ایکٹ. وہ سیکریسی ایکٹ جو صدر نے سائن ہی نہیں کیا، آپ نے اس کو چلے قانون بنا دیا. او بھائی، اس میں کون سی سازش ہے؟ بتا دو کہ پاکستان کا کون سا جو ہے دفاع کو اس خط کے مندرجات نے زخم پہنچائی ہے. کون سا دشمن کے ہاتھ میں آپ نے ایسا ہتھیار دے دیا ہے اس خط کے ذریعے جس میں ڈونلڈ لو کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو نکالو گے تو معافی ملے گی. اس
इसमें कौन सी पाकिस्तान का दिफा खतरे में पड़ गया है? ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट में आपने अंदर कर दिया है इमरान खान को। जब एक केस में बेल होती है जो मैंने करवाई, और वो भी चीफ जस्टिस के साथ मेरी अच्छी खासी जो है गर्मा सर्दी हुई कि जनाब ये क्या आप कर रहे हैं, ये है इस काबिल इस लायक ये जो सजा है कि इसको जवाब रखा जाए। ज्यूरिसडिक्शनल इनकैपेसिटी है, कंप्लेंट इनकॉम्पिटेंट है, म्याद गुजर चुकी है, फिर भी आपके और बुलडोज करके बगैर दिफा दिए बगैर बहस सुने हुए सजा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी कि कौन सी भाई ऐसी जल्दी थी, उसमें जब दिया और मैं जब उससे निकला कि मैंने कहा जो अब आपने फैसला करना कीजिएगा, मैं तो जा रहा हूँ। और फिर मुझे लिफ्ट में झूले दिए गए, 1 घंटा सवा घंटा लिफ्ट में झूले दिए गए। लेकिन मैंने उस वक्त भी कहा था एक तबका है जिस पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और वो वकील है। और आज आपने उसको भी मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैंने कहा मैं मर भी जाता तो काला कोट नहीं मरता था, काला कोट जिंदा था। क्या समझते हैं इस तरह से? क्या आप वकील की आवाज को दबा देंगे? क्या आपका ख्याल है इस तरह से वकील जो है दुबक के घर में बैठ के छुप जाएगा? आपने मेरे घर पे फूल जड़ियां बरसाई, भले करते रहे, आपने ये किया। उसके बाद जो कुछ हुआ मेरी मौजूदगी में, जिस तरह से एक 75 साल के शख्स को, जिसको हाई कोर्ट कह रही है कि इसको हिफाजत से घर पहुंचा के आओ, DIG की ड्यूटी लगाई गई, SP की ड्यूटी लगाई गई, उनको भेजा गया और गुंडों ने उसे घर के बाहर से उसको उठाया, DIG की मौजूदगी में, SP की मौजूदगी में, जिन्होंने मुंडा से मारे हुए थे, और पुलिस वाले साथ जो है शीशा खिड़की खोलकर उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं DIG, जिनको हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था। ये है हमारा क्या, इस नहज पे हम पहुंच गए कि हम अदालत आलिया के इन अहकामात को इस तरह हवा में बखेर कर फेंकेंगे और ये समझते हैं कि ये कौम और ये अवाम जो है ये अंधे हैं, क्या ये गूंगे हैं, क्या ये बहरे हैं, क्या इनको कोई शऊर अकल नहीं है कि ये नहीं समझ रहे क्या हो रहा है इस मुल्क में। बहुत खूबसूरत बातें की मेरे बलोचिस्तान वाले भाई ने भी, बहुत अच्छा किया। वो भाई कानून, आप कानून की गोल्डन जुबली आइन की मनाने जा रहे हो, आप 50 साल आप मगर कर रहे हो, 50 साल। उसने सही कहा, वो एक दिन तो बता दो आपने आइन की अमलदारी की हो आपने। और वही अवामिल बार बार है, पहले कभी तो वो बराए रास्त आ जाते हैं मार्शल लॉ लगाकर वर्दी में, चले मार्शल लॉ फिर भी बेहतर है, कहते तो है ना कि आइन मुअत्तल है। अब तो सरज़मीन ने बेआइन बना दिया बगैर मुअत्तल किए हुए। आज कोई आइन की अमलदारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 14 मई को इलेक्शन करवाओ, 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाओ। ये धुतकार के कंटेम्प्चुअसली उसको जो है उसका डिफाई करते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट से भी मुतकादी हूँ, खुदारा आप जाने वाले हैं, आप कम अज कम इसी की तौहीन अदालत का इर्तिकाब में आप 5 अशखास को अंदर कर दें, आइंदा कोई जुर्रत नहीं करेगा। उस वक्त के वजीर आजम, उस वक्त के वजीर कानून खजाना, उस वक्त के वजीर दाखिला, उस वक्त के वजीर दिफा और उस वक्त के वजीर कानून, ये 5 हैं। इनको आप चाहे टिल दी राइजिंग ऑफ दी कोर्ट करके डिस्क्वालीफाई कर दें, किसी को जरूरत नहीं होगी आइंदा कोई ऐसा काम करेगा। अभी इन्होंने कल मुझे एडिशनल IG का फोन आया और उसने कहा जी आपका बयान लेना है, ये जो परवेज इलाही को उठाया गया है इसमें हाई कोर्ट ने इंक्वायरी की है। और मैंने कहा इतनी औकात है, पहले तुम ये तो बताओ। हाई कोर्ट को भी मैंने कहा, और मैंने वो IG को कहने लगे कि आप इंक्वायरी करें, तो मैंने कहा भूले आले दे अराई हुए चोर तू हुए साईं मैंने सरायकी में ही कहा। और मैंने कहा साईं जो चोर है आप उसी को जो है जिम्मे दे रहे हैं कि वो इंक्वायरी करके आपके आगे क्या वो इंक्वायरी करेगा। एक दफा हाई कोर्ट
को सजाएं दे दे। उस DIG को जो भेजा गया था उसको कि जाके हिफाजत से घर पहुंचा के आओ, उस SP को जो साथ था, दोनों साथ थे, एक, और उस IG को जो कहता है मुझे पता ही नहीं है वो चौधरी परवेज इलाही कहाँ है। वाह तगाफल आरमाना की इंतहा है। मैं कहता हूँ इन तीन को एक दफा हाई कोर्ट तौहीन अदालत में सजा कर दे। आइंदा कोई अहकामात पुलिस वाला मानने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई नहीं करेगा, इसलिए कि हर कोई अपनी जो है वो देखता है, अपना दिफा करता है, अपना बचाव करता है। तो ये गुलामी क्यों करते हैं? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 48 में तकरीर करते हुए ब्यूरोक्रेट्स को कहा था कि भाई देखो, हुकूमतें आती जाती रहनी है, तुम रियासत के मुलाजिम हो, तुमने वो काम करना है जो रियासत, आइन, कानून आपको जो है जो अख्तियार देता है, जो आपसे तकाजा करता है। हुकूमत के या अकाबरीन के गलत अहकामात को आपने नहीं मानना, इसलिए कि हुकूमतें आती जाती रहती हैं। हमने अपनी रियासत को बदकिस्मती से, जो रियासत की तारीफ जो आइन में की गई है वो अवाम है। जिस तरह कहा कि अवाम ही यहाँ अपने हक के वोट के जरिए अपने ऐवान बनाते हैं, पार्लिमान बनाते हैं, असेंबलियां बनाती हैं और वहीं से मुतरश्शे होती हैं हुकूमतें। यही रियासत है। उसमें ना वाजिब पाकिस्तान है, उसमें ना अदलिया है, उसमें ना कोई इंतजामिया है, उसमें कोई और की गुंजाइश नहीं है। ये है रियासत। और आइन के आर्टिकल 5 में कहा गया वफादारी रियासत की, यानी वफादारी आइन की और पासदारी इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की, आइन की और कानून की। इसमें कहीं किसी और तबके का जिक्र नहीं है। तो आइन तो ये आप पर वाजिब और लाजिम करता है कि हर एक ने ताबेदारी करनी है, वफादारी करनी है, अवाम के साथ करनी है, और अवाम ही रियासत है। हमने रियासत को ताबे कर दिया हुकूमत के, हमने रियासत को हुकूमत को ताबे कर दिया अदलिया के, और इन सबसे ऊपर हमने ताबेदारी कर दिया वो आज पाकिस्तान। आइए, ये है हमारा। तो ये देखें, ये बदकिस्मती से देखिएगा कि हमने रिवर्स कर दिया है अपने सारे प्रोसेस को। ये जो इंतजामिया होती है या फॉर दैट मैटर ऑफ वाजिब पाकिस्तान, ये भी एक जो वफाकी हुकूमत के ताबे एक जैली इदारा है। ये इंतजामिया ही का हिस्सा होते हैं। वो उन्होंने बॉर्डर की हिफाजत करनी है, या अगर सिविलियन गवर्नमेंट उनको बुलाए तो वो कोई ऐसा जो है अंदरूनी खलफशार पर जो है वो उसी हद तक करने की मदद होती है। और जो हुकूमत है, हुकूमत वक्त वो अपने दायरे अख्तियार के अंदर जब वो तजावज़ होती है तो अदलिया आ जाती है। हमने बदकिस्मती से अदलिया को भी जो है मानने से इनकार कर दिया है, आइन को भी मानने से इनकार कर दिया है, और हमने रिवर्स कर दिया है, पेंडुलम को सारा का सारा ताबे कर दिया है उसी वर्दी वाले की। तो फिर क्या फर्क पड़ा भाई? फिर वही हैट वाला ही ठीक था, हैट वाला फिर ठीक था। फिर अगर खाकी वर्दी वाले ने हम पर गुलाम मुसल्लत होकर हम पर हुक्मरानी करके हमें गुलाम बनाना है, तो अगर आपने अपना हक को नहीं मांगा, अगर आज आपने हक को नहीं पहचाना, अगर आज आपने हक के लिए लब्बैक कहने वाले, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है या काला कोर्ट है, अगर आपने उनके पीछे या उनका हमनवा होकर आपने एक तहरीक नहीं चलानी है, तो फिर मुकद्दर आपका गुलामी है। फिर मत कहिएगा कि ये क्यों हो रहा है। मुझे एहसास है कि आपके दरो दीवार महफूज नहीं है, आपकी चादर और चार दीवारी की पामाली की जा रही है। आज जो भी एक शख्स जो है स्टैंड लेता है, अदालत उसको बार बार छोड़ती है, मुखलसी करती है, रिहा नहीं किया जाता। ये भी देखा है हमने, मजाक हो रहा है इस मुल्क के साथ। ईमान मजारी की बात की गई, छोटी सी नन्ही सी बच्ची है, उसको फिर जो है पकड़ के उसको अंदर कर दिया गया, और बार 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 अहकामात अदालती की तस्दीक हवा में उड़ाया जाता है। जिस तरह आपने देखा जो परवेज इलाही को जिस तरह हो, खान साहब की मैं आपको बताऊं, मैंने उसको मुलाकात की अटक जेल में, तो मुझे सुपरिटेंडेंट जेल कहने लगा जी मैं नहीं आए हो। मैं कहा जी
सोने नहीं देते ये। एक जो छोटा सा कमरा है जिसमें लाइट इतनी ज्यादा होती है कि रात को सारी रात जो है वो कमर जो होते हैं उस पर लाइट पर आते हैं, जो क्या कहते हैं परवाने और जो भी है वो सारी रात को उसके कमरे में होते हैं और दिन में सारे दिन में मक्खियां होती हैं। तो ये एक बंदे की बात नहीं होती, इत्तेफाक से हालत आता है तो मैं नहीं आया हूँ, तो मैं इसलिए आपको उसका हाल बता रहा हूँ। लेकिन 2-2 रातें 3-3 रातें जगराता देखी, लेकिन उसने शिकायत भी की है और वो सब ना भुट्टो ने शिकायत की थी, भुट्टो ने शिकायत नहीं थी की। गया था डिप्टी कमिश्नर माफीनामा लिखवाने, उसने कहा मेरे बाप का नाम, सर फलां, मेरे दादा का, उसने कहा अपना, उसने कहा ज़ियाउल हक के बाप का नाम, उसने कहा मुझे नहीं पता। तो उसने कहा देयर यू आर, ये तुम्हें जवाब, मैं माफी मांगूंगा, मैं तारीख में मर जाना पसंद करूंगा लेकिन एक खासियत डिक्टेटर के आगे माफी नहीं मांगू। तो ये ऐसे बदकिस्मती हमारी देखिएगा। लियाकत अली को जिना, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना आप देखें, गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, उसको एम्बुलेंस में ले जाते हुए टायर पंक्चर हो जाता है। ये कैसी मजाक है। लियाकत अली खान 1952 में कत्ल कर दिया जाता है और कातिल को वहीं मार दिया जाता है, सब जानते हैं किसने कत्ल करवाया। फिर आइए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसको फांसी हमने दे दी। फिर आइए बेनज़ीर भुट्टो। तो भाई जो भी पॉपुलर लीडर होता है, इस मुल्क का दिल की धड़कन होता है, आवाम की जो भी है ऊपर खिदमत करने के लिए अपने आप को पेश करता है और कामदन होता है, क्यों वो मर जाता है, क्यों वो मार दिया जाता है, क्यों उसको जो है हटा दिया जाता है? क्या यही पाकिस्तान का मुकद्दर है? क्या यही खेल तमाशा चलता रहेगा पाकिस्तान के साथ? 77 साल हो गए हैं, 77 years. Have we tasted the flavor of independence even for a day? Have we seen the fundamental rights articulated in the Constitution being conferred and granted to the people of Pakistan? What is this joke going on with this country? We are the defenders of the Constitution of Pakistan. It was Allama Iqbal, a barrister, जिसने पाकिस्तान का तख़य्युल पाकिस्तान दिया था, ख्वाब दिया था पाकिस्तान का, जिसने तकमील की, वो भी बैरिस्टर। मोहम्मद अली जिन्ना था, फाउंडर ऑफ द नेशन, वो भी वकील था। जिसने पाकिस्तान को आइन दिया, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो भी बैरिस्टर था, वो भी वकील था। और आज जो हम हिफाजत पाकिस्तान करेंगे और पाकिस्तान के आइन की, आज भी हम काला कोट अपने ज़िम्मे लेते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आइए हम मुत्तहिद होकर, आइए हम मुत्तफिक होकर, आइए हम सुप्रीम कोर्ट की बात को इसकी इनकरेजमेंट दें और हम खुद जो है, जो मैंने फ्लैटिस से शुरू किया था, हम भी एक कन्वेंशन पूरा भरपूर पेशावर से शुरू करने वाले हैं और हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान के कोने कोने में आपके सुप्रीम कोर्ट बार के मुआवनत से और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और दीगर बार एसोसिएशन की ताउन के साथ इंशाअल्लाह हम चलाएंगे और पाकिस्तान को उनका हकीकी हक देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें फॉर्मर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, फॉर्मर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, कायद वकला तहरीक जनाब हामिद खान साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो रोशन तशरीफ लाएँ और अपना ख्याल